हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटेटिव मेथड 1 इंटीग्रेटेड एमबीए इंटीग्रेटेड एमबीए ईयर 2018-19 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं. सो ए कंपनी प्रोड्यूस 2 आर्टिकल्स दैट इज एक्स एंड वाई. प्रोसेसिंग इज डन थ्रू द असेंबल एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स. द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ असेंबल department is 60 hours a week and that of the finishing department is done 48 hours a week. Production of 1 unit of X requires 4 hours in assembles and 2 hours in finishings. Each of the unit of Y requires 2 hours in assembles and 4 hours in finishings. If profit is rupees 8 for each of X and rupees 6 for each unit of Y, formulate the linear programming problem and find out the value of x and y. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे. कंपनी प्रोड्यूस 2 आर्टिकल्स x एंड y रेस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे आपको यही लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये नॉन नेगेटिव है. नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर्स 4 आवर्स इन असेंबल्स एंड 2 आवर्स इन फिनिशिंग एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ असेंबल डिपार्टमेंट इज 60 आवर्स ए वीक विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे दैट इज 4 hours required for X plus 2 hours for assemble work. So assemble work is represented through the that is Y. So 2y is less than equal to 60. Similarly, the third दिया हुआ है that is the product of each unit articles 2 hours in assembles and 4 hours in finishings and the maximum capacity of finishing department that is given 48 hours a week. So यहाँ पे लिखेंगे 2 hours in assemble works that is 2x plus 4y is less than equals to 48. So ये हो गया हमारा that is the problem statement for above, that is assemble and finishing. Next is if the profit of rupees 8 for X and rupees 6 for Y, therefore gain from X unit and Y unit are unit of articles each, that is 8x plus 8x and 6y and 6y respectively. So the total revenue Z that equals to 8x plus 6y which is to be maximized. यहाँ पे लिखेंगे which is to be maximized. So ये सबको लेके हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे. सो दैट मीन्स maximum z equals to 8x plus 6y subject to 4x plus 2y less than equals to 60, 2x plus 4y less than equals to 48 and x and y are the non-negative, that is constants. So आइए हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे. So that is maximum z equals to 8x plus 6y and नीचे लिखेंगे subject to that is 2x plus 4y less than equals to 48 and next is 4x plus 2y is less than equals to 60, x and y is greater than equals to, that is non-negative constant. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x and y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो ये जो अनइक्वालिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग इक्वालिटी कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे.
that means 2x plus 4y equals to 48, x equals to 0. So what is the value of 4y? That means 4y equals to 48 and y equals to that is 12. So यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0 and 12. सिमिलरली नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज y equals to 0 and what is the value of x, that is 2x equals to 48, that means x equals to 24. सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 24 and 0. सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट का कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 4x plus 2y, 4x plus 2y equals to 60 when x equals to 0. So what is the value of y? That is y equals to 30. So यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0 and 30. नेक्स्ट है y equals to 0, that means 4x equals to 60, x equals to 15. तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 15 and 0. सो ये जो चार वैल्यू है इसको हम लोग ग्राफ लेके यूज करके जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. सो मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ ग्राफ. सो ये ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट वन है 0, x is 0 एंड y is 12. x is 0 एंड y is 12. सो 12 ये हो गया. नेक्स्ट वन है दैट इज x is 24. तो ये हो गया 24 एंड y is equal to 0. सो y is equal to 0. सो ये हो गया x 24 एंड y 0. सो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. नेक्स्ट है हमारा x is equal to 0 एंड y is equal to 30. x 0 है एंड y is equal to 30. सो यहाँ पे लिखते हैं ये x है ये y है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. नेक्स्ट है x is equal to that is 15. सो 15 मतलब आपका यहाँ पे आएगा x एंड y is equal to 0. सो y is equal to 0, x is 15. सो इसी लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी. तो ड्रॉ करने के बाद ये आ रहा है हमारा. सो दीज आर द फिजिबल रीजन. तो ये हो जाएगा 0 और मान लीजिए इसको हम लोग ए देते हैं. ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी हो गया और ये हो गया सी. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये लगभग यहाँ पे जुड़ जाता है. सो y वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6 और x वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 12. x वैल्यू यहाँ पे 12 आ जा रहा है. सो x वैल्यू इज 12 हियर एंड 6. दिस वन इज 0 0 और ये जो वैल्यू है दैट इज 0 12 और ये जो वैल्यू है यहाँ पर c का वैल्यू दैट इज 15, x है 15 एंड y है 0. सो यही चार वैल्यू को लेकर हमको कैलकुलेट करना है z का वैल्यू. सो यहाँ पे हम लोग z का लिख लेते हैं, दैट इज दिस वन इज a b c एंड ये हो गया d. सो पहले a का लिखेंगे यहाँ पे z इक्वल्स टू दैट इज 8x प्लस 6y. सो पहले लिखेंगे a का दैट इज 0 एंड 2, then b 12 and 6 and c 15 and 0 and d है 0 and 0. so first one है 8 into 0 6 into 12. so ये हो जाएगा 72. सिमिलरली b का
that is 8 into 12 plus 6 into 6, so that equals to 132. Similarly 8 into 15, 6 into 0, that equals to 120. Last one 8 into 0, 6 into 0, that equals to 0. So हमको यहाँ पे लिखना है this one is the maximum, sorry this one is the maximum value. So यहाँ पे लिखना है the maximum profit, the maximum profit is 132, that is obtained, and obtained हमें लिखना है when 12 unit of X article and 6 unit of Y articles are manufactured. So ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.